Good morning, students. So in previous video we have done the Bohr's model and the drawbacks of Bohr. Also we have studied that he was not able to explain about the atomic spectrum, can further divide it into 2, 3 or 4 lines, why it is so. He could not explain the spectrum of multi-electron system. He was failed to explain the magnetic field, that is the Zeeman effect. He was failed to explain the Stark effect, and he was not able to explain the de Broglie and Heisenberg's uncertainty principle. Now, what are these de Broglie and Heisenberg's uncertainty principle that we are going to study in this video? Student, de Broglie बोलने में it's de Broglie and लिखने में it's de Broglie, है ना? So the name is de Broglie. So to overcome the shortcomings of the Bohr's model, certain attempts were made to develop a more suitable and general model for the atom. And two important developments play a very important role in this, and that is the dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. Dual nature of matter. Einstein has suggested that light behave as a dual, the light shows a dual nature, means light can behave as a wave as well as a particle. It has a dual character. But in 1924, de Broglie, thought, can matter also show the dual nature? He just thought about it, and in 1924 he suggested that just as light exhibits wave and particle properties, all microscopic material particles like electrons, protons, atoms, molecules, they also have the dual character. So all the material particles which are in motion, they possess the wave character also. He has said this, that electron have, अभी तक तो क्या पता था that electrons have, he said that electrons have a wave like motion. We were knowing about it, that उनका जो motion है वो wave like है because it is a particle. And electron has restricted orbits, ये हमें पता था. Each orbit has a fixed radius from the nucleus, ये हमें पता था. All a wide variety of wave, wavelengths, frequencies and energies possible, ऐसा उसने सोचा. तो he said no, there could only be allowed certain possible frequencies, wavelengths and energies in an atom, ऐसा बोहर ने बोला था, है ना. तो de Broglie ने क्या सोचा, de Broglie ने सोचा कि light is a dual nature, matter can also be a dual nature, matter can also have the dual nature, and he has suggested and he has given a hypothesis on this. He has said that all the material particles in motion possess wave character, and according to de Broglie, the wavelength associated with a particle of mass m moving with velocity v is having this relationship, that lambda is equivalent to h upon mv, where lambda is wavelength in meters, v is the velocity in meter per second, m is the mass in kilograms, and h is Planck's constant. We know the value of Planck's constant is fixed, and this we express in joule per hertz. Clear? So he has derived this relationship. How he has derived this relationship? See now. He took consider the both the theories, the theory of Planck and the theory of Einstein, or we can say the expression of Planck and the expression of Einstein. What Planck has said, Planck has given the mathematical expression E is equivalent to hc upon lambda. Energy is equivalent to hc upon lambda. Every photon have this energy that is equivalent to hc upon lambda, where h is Planck's constant, c is speed of the light, and lambda is, or the we can say speed of the moving object, and lambda is the wavelength. And Einstein, what Einstein have said, Einstein has said E is equivalent to mc square, where m is mass and c is of course speed or the velocity. Clear? So with both these equations, what we can say, if E is equivalent to hc square upon lambda and E is equivalent to mc square, so we can say that hc upon lambda is equivalent to mc square. Can we say this? And lambda is equivalent to hc upon mc square. Clear? So lambda is equivalent to h upon mc. And when we are talking about the electrons,
So in case of C, we can use here V also, velocity. Velocity of particle we can take in place of speed, or C we can take the velocity of particle. It means lambda is equivalent to h upon mv. So this was the mathematical expression which de Broglie has derived. What he has said that when we talk about the light, we use term c. The velocity of light is c. And when we talk about the matter, the velocity of matter can be expressed in v. So more or less both the things are same. So we can use here v also. So it will become lambda is equivalent to h upon mv. Get it student? समझ में आ गया? प्लैंक्स का उसने लिया इक्वेशन और आइंस्टाइन का इक्वेशन लिया, दोनों को मिलाकर उसे इक्वेशन क्या मिल गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज de Broglie इक्वेशन. यू आर गोइंग टू सॉल्व सो मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस. And mv is equivalent to momentum also, p is equivalent to mv, mass into velocity. So here we can write lambda is equivalent to h upon p, means lambda is equivalent to 1 upon momentum. ऐसा भी हम लिख सकते हैं because h is a constant. So it means the wavelength of any particle in motion of course is inversely proportional to its momentum. ठीक है, तो ये de Broglie ने हमें एक वो दिया था, इक्वेशन दिया, और बाद में ये प्रूव भी हुआ. बाद में हमारे साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था डेविसन जर्मर. उन्होंने ये शो किया, ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन मॉडल दिया उन्होंने, कि डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व करा इलेक्ट्रॉन का विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज. ठीक है, तो अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने ऑब्जर्व किया तो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव. सो अगर इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है. और यही तो de Broglie ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर तो उसके पास है ही, बिकॉज वो पार्टिकल है, बट इट कैन शो द वेव नेचर ऑल्सो. सो ये बात बाद में प्रूव हो गई. हालांकि de Broglie ने तो ये हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन बाद में इसको अप्रूवल भी मिल गया बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट्स. सो ये बात प्रूव हो गई. अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है हमारा de Broglie का? de Broglie का ये जो रिलेशनशिप था, ये जो इसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, क्या इससे कोई और बात भी प्रूव हुई? क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस था? तो आंसर इज़ येस. जो de Broglie थे वो हमारे बोहर के ना फ्रेंड थे, उनके असिस्टेंट थे, उनके फ्रेंड थे. अब बोहर ने इतनी बड़ी थ्योरी दी और इतना कुछ बताया, और उसके बाद उनकी थ्योरी जो है काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आ गए, है ना. तो बोहर ने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं तेरा ना हेल्प करता हूँ थोड़ी सी. मेरा जो इक्वेशन है देख, तेरा एक इक्वेशन था उसको वो सॉल्व करेगा. तो बिफोर हम उस इक्वेशन को देखें, पहले एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि इफ़ what de Broglie said that all the moving particles have the wave nature also. तो अगर ये वेव नेचर है, तो कार अगर मूव कर रही है या बेसबॉल अगर मूव कर रहा है, तो क्या इनमें भी वेव कैरेक्टर्स होने चाहिए? तो अगर ये वेव कैरेक्टर्स हैं, तो ये वेव्स की फॉर्म में मूव करते हुए हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अब ये क्वेश्चन आया दिमाग में. तो आंसर तो इसका ये है कि येस, हाँ, de Broglie के अकॉर्डिंग तो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन शो द वेव नेचर. तो द कार एंड द बेसबॉल डू हैव अ वेलोसिटी एंड मास. इनकी हर कार की, हर बेसबॉल की कोई मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा अगर वो घूम रहा है. तो उसके बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, हम उसके बेस पर निकालते हैं इनके लिए. ठीक है, क्या करा हमने फिर? इनकी हमने वेवलेंथ निकाल ली h अपॉन एम वी वाले फॉर्मूला से. h तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है, और m इज़ मास एंड v इज़ वेलोसिटी. तो हमने क्या लिया? पहले हमने कार का ले लिया. तो मास ऑफ कार इज़ 910 kg और वेलोसिटी है उसकी 25 मीटर पर सेकेंड. जब हमने फॉर्मूला में पुट किया तो उसका जो वेवलेंथ हमारे पास आया, दैट इज़ -2.9 इंटू 10⁻38. तो ये क्या है? ये बड़ी है, ये तो बहुत छोटी है. दिस वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल. ये इतनी स्मॉल है कि इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से भी मेजर नहीं किया जा सकता. ऑन द अदर हैंड, अगर हम बेसबॉल की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, दैट इज़ 9.11 इंटू 10⁻21. ठीक है, तो इसके बेस पर जब हमने इसकी वेवलेंथ निकाली, तो दिस इज़ -2.9 इंटू 10⁻5. इट इज़ 10⁻5
एंड इट वॉज 10⁻38। नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की वेवलेंथ में। उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। बट जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है दैट इज़ स्मॉल, सो इसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सी द वेव नेचर ऑफ the moving car or the moving ball, but we can see the wave nature of electron. Clear? क्योंकि मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है तो फिर वो विजिबल रीजन में नहीं आती और फिर हम उसे देख नहीं पाते, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है। H इज इक्वल टू क्या लिया हमने, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा जो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास का। मास जितना ज़्यादा लैम्डा उतना कम, मास जितना कम लैम्डा उतना ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है तो लैम्डा हमारा थोड़ा ज़्यादा आएगा। दिस विल फॉल इन द विजिबल रीजन एंड दैट इज़ वाई वी एबल टू सी दैट। Clear? There is one more question in front of your screen. That is, what is the wavelength of an electron of mass? Mass is given to us and the velocity. Velocity is also given to us and Planck's constant की value भी हमें given है, which is constant, but they have given to us. So what we have to calculate here, we have to calculate the wavelength. Wavelength के लिए हम क्या formula apply करेंगे, h upon mv, and with this formula we can calculate and answer will become 3.64 into 10 to the power minus 15. आप लोग सॉल्व करके देखिएगा ज़रूर। ठीक, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिब्रॉय और ब्रोगली के बीच में डील हुई। डिब्रॉय ने बोला कि नहीं नहीं भाई तू परेशान मत हो, तेरी हेल्प करता हूँ, रुक जा थोड़ी सी। अब देखो बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहा है यहाँ पर अपने सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बोहर ने है ना ऐसा बोला था, सर्कुलर पाथ है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है और ये इसका पाथ है, इसके ऊपर ये घूम रहा है। डिब्रॉय ने क्या बोला, डिब्रॉय ने बोला कि इलेक्ट्रॉन शो द वेव नेचर। तो अगर वेव नेचर है तो वो घूम तो रहा है, लेकिन घूम कैसे रहा है, जैसे वेव्स घूमती हैं, वेव्स की फॉर्म में घूमते घूमते घूम रहा है ना। तो अगर हम देखें इसको तो ये तो हुआ बोहर के अकॉर्डिंग कि ये गोल 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 सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता जा रहा है। ठीक, और बोहर के अकॉर्डिंग क्या है, इस तरीके से घूम रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, बट अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, वो सीधा सीधा नहीं रोटेट करता रहता, वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता हुआ आगे रोटेट होता है। ऐसे ही इसने क्या बोला डिब्रॉय ने कि वेव जो है वो वेव फॉर्म में घूमेगी। जैसे ये वेव्स बनी हुई हैं, देखो ये वेव्स हैं, ये वेव्स की फॉर्म में घूम तो रहा है, सर्कल तो पूरा हो गया। लाइक अगर ये अभी ब्लू वाला पोर्शन देखें, ब्लू से ब्लू तक एक सर्कल तो कंप्लीट हुआ, लेकिन वेव्स की फॉर्म में हुआ। ये फर्स्ट ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट का अगर हम देखें तो रेडियस विल इंक्रीज, तो वेव भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना रेडियस होगा ऑर्बिट का, जितना हमारे ऑर्बिट का रेडियस होगा, ये देखो ये ऑर्बिट का जितना रेडियस होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही होगी, है ना। उसकी जो वेवलेंथ है उतनी ही होगी, नॉट रेडियस सॉरी, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से लेकर पूरा चक्कर काट के उसी पॉइंट तक जो पहुंचेगा दैट इज सर्कमफ्रेंस, और वही डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ। जितनी उसकी वेवलेंथ है उतना ही तो उसको सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगी उसकी वेवलेंथ। और अगर n इज इक्वल टू 1 तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 1 इंटू वेवलेंथ, एंड n इज इक्वल टू 2 तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा, है ना। इस तरीके से उसने बोला। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने सबने पढ़ा है, दैट इज 2 पाई आर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस डिब्रॉय क्या है हमारी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। क्या, तो अगर हम यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा में लैम्डा की वैल्यू रख दें तो इट विल बिकम 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। ठीक है, और अगर हम एम वी को उस साइड ले जाएं, दूसरी साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ और 2 पाई आर को इधर ले आएँ तो इट विल बिकम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और यही तो बोहर ने कहा था कि ओनली in that orbits electron can revolve, those are having the angular momentum of nh upon 2 pi, जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल हो, ऐसे ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। उसने बोला था, ये आपको मैंने
बोहर के पोस्टुलेट्स में बताया था कि एम वी आर शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और यही डिब्रॉय की इस इक्वेशन से भी आ गया, डिराइव कर लिया हमने, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिब्रॉय का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट सपोर्ट्स द बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है। ये देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम म्यू, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एच एन एच अपॉन एम वी, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस डेरिवेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, 1 और 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा, आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डू मेनी न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, है ना। नंबर ऑफ वेव्स इक्वल क्या होगा हमारा, कितना नंबर ऑफ वेव्स होंगे, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन वेवलेंथ, है ना। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2 पाई आर, और वेवलेंथ हमारा क्या होता है लैम्डा। तो नंबर ऑफ वेव्स यानी कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी अगर आप यहाँ पर रखें तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी जो ऑर्बिट होगा उतनी ही वेव्स होंगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी उसकी 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी 2। तो इसका मतलब कि जितना जिसका सर्कमफ्रेंस होता है उतनी ही उसकी वेवलेंथ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ऑर्बिट के बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक ऑर्बिट में एक ही वेव है, अगर एक ही वेव है तो वो ही उसकी सर्कमफ्रेंस भी होगी, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि मैंने लिया है ना 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। एन लेमडा क्यों लिया मैंने, बिकॉज सर्कमफ्रेंस जो है वो किसके इक्वलेंट हमने सब मानी है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द वेवलेंथ, है ना, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with the velocity of 2.05 into 10 to the power 7. Velocity is given to us and we have to calculate the wavelength. So we will apply the de Broglie's wavelength for mathematical expression, that is lambda is equal to h upon mv, ठीक है। m of electron we know it's fixed 9.11 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। h की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है 6.63 into 10 to the power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 2.05 into 10 to the power 7। तो लैम्डा इज इक्वल टू सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इट विल बिकम 3.55 into 10 to the power minus 11 मीटर्स। वन मोर न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट। मास निकालना है हमें, वेवलेंथ इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन, बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन तो हम de Broglie वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बट वी हैव टू कैलकुलेट मास। सो मास इस चीज़ से डिराइव हो जाएगा फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वी। एच वैल्यू गिवन है, लैम्डा दैट इज़ वेवलेंथ गिवन है हमें, वो आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है, आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। एंड what else we required, v velocity that is also given in meter per second। सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, आपके पास मास आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, बट एग्ज़ाम्स में आते ज़रूर हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया। क्या बोला हेजनबर्ग ने, देखते हैं अब इनकी भी बात सुन लेते हैं, है ना। हेजनबर्ग ने बोला 1927 में बोला इन्होंने कि इफ़ अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज़ प्रिसाइजली नोन, द लोकेशन ऑफ द सेम पार्टिकल इज़ कम्प्लीटली अननोन। क्या मतलब हुआ इस बात का, लॉ क्या था उनका, उन्होंने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल मतलब उन्होंने बात को बिल्कुल ही मना कर दिया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द, it is impossible to calculate the position and momentum, it is impossible to measure or calculate the position and momentum और velocity भी हम कह सकते हैं of a microscopic particle with absolute accuracy, कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है,
और उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया। पहले उसको समझते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या उन्होंने रीज़न क्या दिया। तो बात करते हैं रीज़न की। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड माइक्रोस्कोपिक मैटर वेव्स एग्जिबिट अ डुअल कैरेक्टर ऑफ मास एंड मोमेंटम, है ना, एंड अ वेव कैरेक्टर, ये हमें पता है। पोजीशन एंड वेलोसिटी, या हम मोमेंटम कह सकते हैं इसको, ऑफ मैक्रोस्कोपिक मैटर वेव्स कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। जो मैक्रोस्कोपिक होगा, जो बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल द लोकेशन एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग कार। अगर आप किसी कार में हैं और आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी लोकेशन और स्पीड क्या है, तो यू कैन बी डेटरमाइन एट द सेम टाइम, बट छोटी मोटी एरर होगी, विद मिनिमम एरर, बट यू कैन। बट इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, लाइक हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, here we are talking about electrons. Electron is a microscopic particle, so it is not possible to fix the position and measure the velocity of the particle simultaneously, because क्या है, an atom, an electron is an atom, जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास है दैट इज़ 9.91 इंटू 10⁻31, और जो स्पीड है उसकी वो कितनी है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक तो इतना कम मास, ऊपर से इतनी ज़्यादा स्पीड, तो वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ घूम रहा है। अब क्या है, वी कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स लाइक द इलेक्ट्रॉन्स विद द नेकेड आइज, वो तो हम देख भी नहीं सकते। सो पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है हमें। तो क्या करेंगे, एक पावरफुल लाइट में कोलाइड विद दीज एंड इल्यूमिनेट इट, है ना, कोई पावरफुल पार्ट आएगा और इसको कोलाइड करेगा और तभी इल्यूमिनेट होगा। तो ये जो इल्यूमिनेशन है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। द कोलिजन ऑफ पावरफुल लाइट सोर्स जो है दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। बट जब ये टकराएगा इससे, इलेक्ट्रॉन से, तो इट विल इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक्स इट मूव अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, क्योंकि बहुत छोटा सा साइज़ है, बहुत कम मास है इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये पावरफुल लाइट जब टकराएगी उस इलेक्ट्रॉन से, तो उसके मोमेंटम को थोड़ा सा बढ़ा देगी, जिससे वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा सा हट जाएगा, है ना। तो दस व्हेन फिक्सिंग द पोजीशन और द वेलोसिटी वुड हैव चेंज्ड, तो उसका जो पोजीशन है या उसकी जो वेलोसिटी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स देयर विल बी सम एरर अकर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम। तो आप उस टाइम पर अगर उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को चेक करते हैं, तो आपको किसी एक में थोड़ी सी एरर मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मोमेंटम में एरर मिलेगी, और अगर आप मोमेंटम या वेलोसिटी को एग्जैक्ट मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पोजीशन में थोड़ी सी एरर मिलेगी। ऐसा हेजनबर्ग ने न सिर्फ बोला, बल्कि इस बात को उसने प्रूव किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम में आप दोनों चीज़ों को डिटरमाइन कर लें। क्योंकि देखो ना, प्लैंक्स ने भी क्या बोला था, E इज इक्वल टू hc/λ, है ना। तो एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, और एनर्जी अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं हम लाइट से, तो वो हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किक मिला है, एनर्जी मिली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस मीन्स कि जो लाइट का जो वेवलेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसने क्या बोला, उसने उस एरर को एक्सप्रेस करने के लिए, इस एरर को मेजर करने के लिए एक एक्सप्रेशन दे दिया। एक्सप्रेशन क्या था कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी दैट इज मोमेंटम, द एरर इन मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स द एरर इन पोजिशन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2π। ये उसने एक्सप्रेशन हमें दे दिया। क्लियर। तो डेल्टा पी की जगह हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी हमारा जो है दैट इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज इक्वल इनटू पी इज इक्वल इनटू एम वी। तो यहाँ पर हम x की जगह, इसी एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ पर हम x की जगह p की जगह, डेल्टा p की जगह m डेल्टा v भी रख सकते हैं। हमने m में डेल्टा क्यों नहीं लगाया, बिकॉज मास तो हमें पता है, मास तो फिक्स होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है। सो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये उसने एक्सप्रेशन दे दिया, किसके लिए, टू कैलकुलेट द एरर इन द मास और एरर इन द एरर इन द वेलोसिटी और एरर इन द मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स m डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π।
ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 पाई लिखा हुआ है, दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ h अपॉन 2 पाई 4 पाई, ठीक है 4 पाई, इसमें करेक्शन कर लेना, 4 पाई है हमारा। तो अगर हम m की वैल्यू तो फिक्स है, उसे हम 4 पाई के पास ही ले आएँ, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। समझ में आई मेरी बात। एक्सप्रेशन क्या था, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा p की जगह हमने रख लिया m डेल्टा v, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा x डॉट m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। m को हम, क्योंकि m की वैल्यू फिक्स है, उसे हम 4 पाई के पास ले गए कॉन्स्टेंट्स वाली साइड पर, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, वेलोसिटी में एरर जो है उतना कम होता चला जाएगा। यानी मास जितना ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी और पोजीशन में एरर उतना कम होगा, लेकिन मास जितना कम होगा, वेलोसिटी और पोजीशन में एरर उतना ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इसमें हमें एरर मिलेगा देखने को। अगर आप पोजीशन में आप कहते हैं बिल्कुल एरर नहीं है, पोजीशन आपको एग्जैक्ट पता है, यानी डेल्टा एक्स 0 है, कोई एरर नहीं है उसमें डेल्टा एक्स में, तो डेल्टा वी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी मोमेंटम में, यानी वेलोसिटी में आपको एरर मिलेगा। और अगर आप कहते हैं वेलोसिटी आपको एग्जैक्ट पता है, यानी डेल्टा वी 0 है, कोई एरर नहीं है उसमें, तो फिर पोजीशन में एरर होगी, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ जो हैं हो ही नहीं सकता इक्वल हो। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि व्हेन वी सी द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपना जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूविंग ऑब्जेक्ट वगैरह हम देखते हैं, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप एक्यूरेटली उनकी वेलोसिटी को और उसके क्या कहते हैं उसको, पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, और उसके लिए उसने अपना एक एक्सप्रेशन भी दिया। एज आई एम टेलिंग यू, एक्सप्रेशन में आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब हमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, सी द न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों बोला इसको, क्योंकि उसने बोला सर्टन नहीं होगा, जो हमारा पोजीशन है और वेलोसिटी है, दैट विल नॉट बी सर्टन, दैट विल नॉट बी फिक्स्ड, देयर विल बी सम एरर इन दैट, इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया। तो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 2000 kg। 2000 kg का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हुज पोजीशन इज़ नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर। उसकी जो पोजीशन है उसमें हमें एक्यूरेसी पता है, कितनी एक्यूरेसी है, 10 मीटर की एक्यूरेसी है उसकी, तो हमें उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है, यानी वेलोसिटी में कितना एरर होगा ये निकालना है। मास इज़ गिवन टू अस, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स इज़ गिवन टू अस। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इंटू मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम की बजाय मैंने आपको बोला था डेल्टा पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम डेल्टा वी, और एम को अगर हम कांस्टेंट वाली साइड में ले जाएंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी is equal to h upon 4 pi m, where h is constant, m is constant for electron, but here the m is given to us. So delta x is given to us, we will put that in the formula. M is given to us, we will put that in the formula. The value of h, that is Planck's constant, is fixed, 6.6 into 10 to the power minus 34 kilogram meter square per second, that is fixed, we will put in the formula. So delta v will come to us, that is 2.636 into 10 to the power minus 34 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो, इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 0.022 नैनोमीटर, इतनी एक्यूरेसी बता रहा है वह, यानी डेल्टा एक्स हमें मिल गया। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, यानी डेल्टा पी वी हैव टू कैलकुलेट इफ़ सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, अब वो क्या कर रहा है, मोमेंटम उसने हमें दे भी दिया कि इफ़ सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन 4 पाई m इंटू 0.05 नैनोमीटर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग इन दिस वैल्यू। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना है, तो अब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी आएगी। पहले हम जो उसने दिया है क्वेश्चन में उसकी बात नहीं करते, उसे भूल जाते हैं, पहले हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 0.022 नैनोमीटर, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास देने की ज़रूरत नहीं है उसे, हमें पता है मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, दैट इज़ फिक्स्ड वैल्यू। तो अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा पी।
खैर यहाँ मास की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मोमेंटम की बात हो रही है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, फॉर्मूला से हमने डिराइव कर लिया। एच की वैल्यू हमें पता है, इट्स फिक्स 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 4 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 फिक्स, एंड डेल्टा एक्स इज गिवन टू अस 0.022। नैनोमीटर में था, हमने मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम आ गया हमारे पास 2.63 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड की अनसर्टेनिटी है इसमें। क्लियर। अब हम देखते हैं कि उसने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। अब हमने क्या बोला, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी h अपॉन 4 पाई m, h अपॉन 4 पाई m मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ हमने मास ले लिया है, मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि जो ऊपर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें भी मास गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 1/002 इंटू 10⁻⁻9। ये हमारा क्या है, डेल्टा एक्स, h अपॉन 4 पाई m मल्टीप्लाइड बाय 1/डेल्टा एक्स। ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी के लिए हमने एक्सप्रेशन बनाया है। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू हमने रख दी, और उसने क्या बोला हमें, उसने जो गिवन है वो है उसके हिसाब से है h अपॉन 4 पाई m इंटू m इंटू 5 इंटू 10⁻11। नैनोमीटर था, उसको हमने क्या करा, चेंज कर लिया। 0.05 नैनोमीटर को हमने मीटर में चेंज करा तो कितना आया, 5 इंटू 10⁻11। मतलब हमारे हिसाब से वेलोसिटी में जो आया है अनसर्टेनिटी, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, और वो जो एक्सप्रेशन दिया है उसने, उसके हिसाब से जो अनसर्टेनिटी था वो हमने राइट हैंड साइड पे पुट कर लिया। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि इनमें काफ़ी डिफरेंस है ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन। उसका कितना है 5 इंटू 10⁻11, और यहाँ पर कितना है हमारे पास 5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर। तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज़ मच लार्जर देन द एक्चुअल मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है कि इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के मोमेंटम में काफ़ी फ़र्क है। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया कि पहले आप अपना वो निकालो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में, फिर जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कंपेयर करो। तो कंपेयर करने पर हमने देखा कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो क्योंकि डिफरेंस आ रहा है तो आप बोलेंगे कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफ़ाइन। अगर डिफरेंस नहीं आता तो आप बोलते येस इट इज़ पॉसिबल टू डिफ़ाइन। सो इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आते हैं, और ज़रूर आते हैं, समझ में रखो इस बात को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मेनी क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू इन द असाइनमेंट, practice that. Thank you.